हेलो सर। हेलो, आवाज आ रही मेरी? हाँ आ रही है। ओके ओके। हाँ एक मिनट। हेलो सर। हेलो अमन, हेलो। नोटबुक ठीक है? दिख रहा है? हाँ जी, दिख रहा। यस सर। है 94 हो गया था ना? यस, 94 एमसीक्यू हो गया था ना? एमसीक्यू नंबर 94। हाँ सर। 95 करो, 95 से स्टार्ट करो फटाफट। Okay. A transistor is used as a common emitter amplifier with load resistance. Load resistance means output resistance. And input resistance, it is given 150 ohms. Okay. The base current it is given, which results in the change in the collector current. So ये बीटा का वैल्यू है. The voltage gain of the amplifier is. So मैंने आपको बताया था ना voltage gain का फॉर्मूला, बताओ क्या था वो? देखो वोल्टेज गेन होता है आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट बीटा वोल्टेज। इनटू आर नॉट अपॉन आर। हाँ, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। तो आउटपुट करंट होता है आईसी एंड उसका रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस रहेगा आर आउट, और इनपुट रेजिस्टेंस होता है आईबी, उसका रेजिस्टेंस रहेगा आर इन। आईसी अपॉन आईबी होता है बीटा, तो बीटा इंटू आर आउट डिवाइडेड बाय आर इन। तो ये है उसका फॉर्मूला। तो आप फाइंड कीजिए। एवी इट इज इक्वल टू क्या रहेगा? आईसी द कलेक्टर करंट 1.5 into 10 raised to power minus 3, बीटा का वैल्यू है 20 into 10 raised to power minus 6। हाँ, आर आउट का वैल्यू है 2 किलो, मतलब 2 into 10 raised to power 3 एंड दिस इज 150। तो देखो सारे वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली व्हाट विल बी द आंसर? 1000। ओके, सो बी ना 1000, राइट? So this will be 1000. So option B is correct. सबको आ गया आंसर? ओके, 96. Change of 0.04 voltage take place between base current and emitter when an input signal is connected to CE transistor amplifier. As a result, 20 microampere changes take place in the base current and a change of 2 milliampere take place in the collector current. Find the input resistance and AC current gain. So AC current gain मतलब beta value. Okay. And input resistance means your Rin. Okay. तो आप सेम फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट?
So what is the change in base current? The change in base current IB, it is equal to 20 micro ampere, and change that take place in correct current. So IC value, it is equal to 2 milliamperes. So what is the value of beta? Beta, it is equal to delta IC divided by delta IB. So obviously it will be 100, क्योंकि 200 नहीं हो सकता, 100. So A या B में से आंसर आएगा, राइट. नेक्स्ट क्या चाहिए आपको? AC input resistance. So input resistance you get this AV value, it is equal to beta. R out का वैल्यू दिया है क्या? नहीं. V is equal to IR sir. V is equal to IR से आएगा ना. तो आउटपुट चाहिए, आउटपुट वोल्टेज. So output voltage, it is equal to output current, that means IC multiplied by output resistance. Sorry, input चाहिए. Okay, input resistance. So input resistance will be IB multiplied by input voltage. So a change of 0.04 voltage take place between base and emitter. तो base and emitter तो ground रहता ना, common emitter लिखा है. So that is what the input voltage, it is given 0.04. IB का value दिया है, it is what 2 milliampere multiplied by Rn. So obviously R का value किस के range में रहेगा? 2 के range में रहेगा, right? So 2 kilo ohm, that is option A. आया सबको? अनिरुद्ध आ गया? हाँ सर आ गया. Okay. Next is 97. So a transistor is connected in a common emitter configuration if the collector circuit VCC. In a collector circuit, VCC is given, RC is given. So you can get the value of IC. है ना? VCC is equal to IC into RC. देखो सबसे पहले आपको क्या पूछा है? IC, then VCE, then IB. So आप पहले 0.625 सर. ओके तो देखो IC will be equal to VCC divided by RC. So नहीं 8 voltage divided by sorry. okay 800. So it will be 1 milliamps. C option. 1 milliamps, right? तो 1 milliamps I think एक ही ऑप्शन में है, तो C ऑप्शन है. ठीक है. तो पीछे 97 का A क्यों दिया है, फिर गलत दिया है. अच्छा A दिया है, 2 मिनट फिर देखते हैं 2 मिनट. So 97, a transistor is connected in a common emitter configuration in the collector circuit. So this is what VCC. उसके बाद में there is a resistance RC. Okay. The voltage drop across RC, it is given. Okay. तो यहाँ पे voltage drop across RC, it is given 0.5 voltage. ठीक है. तो इसके आगे voltage कितना, इसके across चाहिए ना. तो RC, it is equal to 800 ohms. Okay. So next is this is what collector, this is what base, this will be emitter. Okay. If the voltage drop across RC, it is 0.5 voltage and alpha value is given, then we can get the value of IC, VCE and IB. So ये circuit है. Okay. इसके लिए 0.5 voltage drop हो रहा है. ये कितना voltage है? 8 voltage. तो यहाँ पे कितना voltage आएगा total आगे? 7.5 voltage, right? तो 7.5 voltage will be divided by this 800. तो उसमें से मिलेगा आपको वैल्यू IC का. तो 0.5 डिवाइड बाय 800 करेंगे तो 0.625. हाँ सर, बिकॉज अभी 7.5 डिवाइडेड बाय 800 कर रहे. 0.5 divided by 800 करना है ना. 0.5 divided by 800 करना. देखो V is equal to IR. What is V? V is voltage drop across resistor.
this is the resistance of the resistor, this will be current flowing through the resistor. Okay, तो IC का वैल्यू ये मत सोचो आप 7.5, IC का वैल्यू आएगा 0. Infinity. ओके, कनेक्शन लॉस हो गया था, सॉरी. ओके, आया किसी का आगे? ए ये ऑप्शन आया, कैसे आया आगे? आगे क्या लिखा है? VCE. VCE तो आपने बताया ना 7.5. हाँ, तो ये आगे ये है VCE, तो ये VCE है, राइट. तो अगर 8 वोल्टेज इधर आ रहा है, यहाँ पे 0.5 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो VCE कितना आएगा? 7.5 वोल्टेज. ठीक है, तो सर मतलब VCC हमेशा टोटल रहता है, एकदम स्टार्टिंग पोजीशन का रहता है. हाँ, VCC मतलब एकदम स्टार्टिंग पोजीशन का. ठीक है, नेक्स्ट 98. A DC common emitter current gain of NPN transistor is 50. The potential difference applied across the collector emitter of the transistor used in C configuration is this much. If the collector resistance दिया है, the base current and collector currents are. Common emitter current gain. So common emitter current gain मतलब किसका वैल्यू है? करंट गेन मतलब बीटा, तो बीटा इज 50. ओके, बीटा मतलब IP डिवाइडेड सॉरी IC डिवाइडेड बाय IB. ओके, Hmm. तो ये ऑप्शंस देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए ना. ये ABCD को IC डिवाइडेड बाय IB करो, देखो किसका आंसर 50 आ रहा है. किसी का ए ऑप्शन ए का आंसर आ रहा है 50. हाँ, दिस इज 0.5 मिली एम्प्स, मिली मतलब 10⁻³ और ये रहेगा 10⁻⁻6, तो ये हो जाएगा 5. 0.5 into 10⁻³ plus 5 मतलब 0.5 into 10⁻², मतलब आंसर आएगा 50, राइट. सो दैट इज ऑप्शन ए. आगे सबका? हाँ Yes, सर. sir. ओके, गुड. नेक्स्ट इज ऑसिलेटर्स. याद है ना ऑसिलेटर्स का ब्लॉक डायग्राम? क्या था ऑसिलेटर का ब्लॉक डायग्राम? ये है इनपुट. ओके, फिर उसके बाद में ये मिक्सर होता है. सपोज मिक्सर इज देयर, या फिर you can consider it as what adder or it can be subtractor. It depends on, suppose that he consider किया, so it depends on the feedback whether it is positive feedback or negative feedback. Okay, input होता है, उसके आगे क्या लगाते हैं हम लोग? इनपुट के आगे लगाते हैं हम लोग एम्पलीफिकेशन फैक्टर. So यहाँ पे हमारे पास में है इनपुट है. हाँ, लैग हो रहा है, वो भी क्या कर सकते हैं, नेट का इशू है यहाँ पे. इनपुट है हमारे पास में एम्पलीफिकेशन फैक्टर. एम्पलीफिकेशन फैक्टर क्या रहता है? वो ए रहता है. ओके, देन दिस इज व्हाट एन आउटपुट. आउटपुट इसको हम पास करते हैं फीडबैक फैक्टर से. सो दिस व्हाट अ फीडबैक फैक्टर. फीडबैक फैक्टर कितना होता है? बीटा. ओके, उसका नाम क्या है? बीटा. so this is given to the adder. Okay, now what is the overall gain? Overall gain, it is equal to A. Okay, kabhi when we consider without feedback, now this AV value, it is equal to A divided by 1 minus A beta. ठीक है, 1 minus A beta. कभी हम लोग कंसिडर करेंगे AV it is equal to A divided by 1 minus A beta,
जब भी it will be written as positive feedback. If it is a positive feedback, फिर हम लिख सकते हैं this AV it is equal to A divided by 1 minus A beta, and AV will be equal to A divided by 1 plus A beta. कभी when it is what? Negative feedback. Okay. सीईटी वालों के लिए नहीं हाँ हाँ बोल रहा हम लोग के लिए हाँ 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 क्या हाँ क्या सर ऐसे गुरु मत डर लगता है अनिरुद्ध क्या हो गया? नहीं सर कुछ नहीं अरे बोलो तो सही. नहीं गणेश ने बोला आप बहुत मतलब गुस्से से देख रहे थे इसलिए थोड़ा मैं बोला कि गुस्सा हो गया क्या नहीं नहीं, ये नेट का इशू है ना यहाँ पे, प्लस कुछ अभी बोलेंगे तो तो आएगा डायग्राम भी नहीं. चालू किया था अच्छा, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ आपको. ये देखो, ये इनपुट है, देन आउटपुट है, देन दिस इज व्हाट एन एडर, दिस इज एम्पलीफिकेशन फैक्टर, दिस इज व्हाट फीडबैक फैक्टर. सो जब भी विदाउट फीडबैक अगर बोले, सो विदाउट फीडबैक इट विल बी AV इट इज इक्वल टू A. नहीं दिख रहा ना डायग्राम? डायग्राम चल नहीं रहा ना? दिख रहा है नोटबुक चल रहा है? नहीं वो अभी नहीं रुक चल गया रहा लेकिन रुक रहा है नोटबुक दिख रहा है, कुछ चल नहीं रहा। ओके. तो AV it is equal to A, it is what without feedback, and AV it is equal to A divided by 1 minus A beta. कभी जब भी it is what a positive feedback, and AV it is equal to A divided by 1 plus A beta when it is what negative feedback. Okay. सर वॉइस चला गया आपका When it is a negative feedback. ठीक है, तो ये आप नोट कर लो, राइट? नोटबुक ब्लर दिख रहा है सर 144p नोटबुक पे कुछ नहीं दिख रहा। पिक्सेलेटेड ठीक है. हाँ Now next is Barkhausen criteria. Barkhausen criteria कहता है कि ये वाला जो ऊपर वाला सर्किट है, it will act like what an oscillator. It is going to act like what an oscillator. कभी it will act like an oscillator जब भी वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है. कौन सी दो कंडीशन? कि फीडबैक जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए. फीडबैक शुड बी पॉजिटिव. ठीक है. और दूसरा, A बीटा वैल्यू शुड बी इक्वल टू 1. A multiplied by beta value should be equal to 1. यस Okay, so this is what the two condition of Barkhausen criteria. मतलब ऑसिलेटर के लिए फॉर्मूला ये है, पॉजिटिव फीडबैक होना चाहिए ना, तो पॉजिटिव फीडबैक का A divided by 1 minus A beta. So A beta value should be equal to 1. That means 1 minus 1 should be 0. मतलब जो गेन है, ओवरऑल गेन है, वोल्टेज गेन है, वो कितना था? It should be nearly equal to infinity. Theoretically and practically it should be very high. Okay, so let us now do that MCQ. So 99 wala. Okay. So in an oscillator for sustained oscillation, Barkhausen criteria is A beta equal to. Okay, what A beta value should be equal to? 1. It should be 1. Option C, right? Next. 100 wala. The voltage gain of the amplifier, it is 9%. And it is written, it is what a negative feedback. Okay, तो positive feedback नहीं है, negative feedback है. Negative feedback मतलब हमें plus वाला use करना है formula. Okay, so AV value it is equal to A divided by 1 plus A beta. ये वाला use करना है हमें, because it is what written, it is what a negative feedback. So voltage gain is 10. So AV का value है 10 with 9% of negative feedback. The voltage gain without feedback will be. The voltage gain without feedback, voltage gain क्या होता है? Without feedback it is nothing but A. लिखा था ना पिछले वाले पेज पे? लिखा है, सब लोग ने नोट किया है क्या इसको? हाँ हाँ हाँ, नोट किया है ना? सर इसका So आंसर कैसे है बताओ without feedback it is what A. Okay, so we want to get the value of A. इसमें हमें A का वैल्यू फाइंड करना है. So A का वैल्यू फाइंड करना है. हाँ गणेशन बोलो, क्या बोल रहे हो? गणेशन क्या बोल सर रहे हो? कैसे करेंगे पूछ रहा हूँ कैसे करेंगे पूछ रहा हूँ हाँ, with 9% negative feedback, तो feedback factor दिया है 9%.
So beta का value दिया है, beta का value it is what 9%. So this will be what 9 divided by suppose 100, 0.09 ऐसा, right? So beta का value ऐसे 0.09 substitute करके देखो आता है क्या? A divided by 1 plus 0.09 A, okay? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो 10 plus 0.9 A it is equal to A. So 10 it is equal to 0.1 A, तो A is equal to 100. 100 है क्या पीछे? B option. हाँ सर। बराबर। So B option आ रहा है, right? Yes. Next is 101. शगुन वाला MCQ है, but it does not belong to our chapter semiconductor. ये EMI chapter का है. The resonant frequency of the tank circuit. याद है ना टैंक सर्किट कैसा था? टैंक सर्किट ये इंडक्टर यहाँ पे और कैपेसिटर उसके पैरेलल में है, तो उसको टैंक सर्किट कहता है, ठीक है? यस। तो इसका L का वैल्यू दिया है, C का वैल्यू दिया है, तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या रहता है? FR it is equal to 1/2 pi under root of L by C, LC. right ना? LC sorry. FR it is equal to 1/2 pi under root of LC. चलो इसे सॉल्व करो. FR it is equal to 1/, अंडर रूट अगर कंप्लीट ले लूँ मैं, सो ये रहेगा 4 into पाई स्क्वायर. L का वैल्यू है 10 divided by पाई स्क्वायर. C का वैल्यू 0.04 ऐसा, तो पाई स्क्वायर कैंसिल. Then this will be 1 divided by under root of 1.6, right? कितना आ रहा है? 16. 1.6 बराबर. नहीं है। हाँ, क्या हो गया? इससे अच्छा तो लेग Sir is back. लेते तो ज्यादा बेटर. क्या क्या बोला? वापस बोलना, मैं सुना नहीं. सच्ची अच्छी बात है, दे सुना तो. अच्छा बोर हो रहा है यार. सर चले गए? ये सब लोग सामने वीडियो देख- चालू करो, वीडियो चालू सामने करो. देख- देख तो रहे. सामने देख। हाँ हाँ, सर देख तो रहे. मैं चालू करता हूँ तेरा, रुक जाए जरा. CS ये देखो यहाँ पे सीएस क्या बोल रहा था तू? मैं बोला सर चले गए क्या? सो L इट इज इक्वल टू L का ये जो यूनिट हमने कंसीडर नहीं किया यहाँ पे 10 raised to power minus कुछ क्या आएगा? नहीं मिली दिखेगा. में ना, मिली में ना 10 raised to power minus 3 आएगा, और C का जो यूनिट है माइक्रो में है, तो 10 raised to power minus 6 आएगा इसमें, ठीक है? तो ये भी कंसीडर करो, ठीक है? फिर ये कितना हो जाएगा? 10 raised to power -3. -9 ना. ये भी है कि 2 बराबर. तो ये देखो अंडर रूट ऑफ 16 into 10 raised to power minus 10, ओके? तो ये हो जाएगा 4 into 10 raised to power minus 5. ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 0.25 into 10 raised to power plus 5, so 25 किलो आएगा. आंसर देखो. Option B. ऑप्शन बी, राइट? ठीक है. आ रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ वाओ ये क्या है? नेक्स्ट इज लॉजिक गेट्स. सर मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था. आंसर क्या था? 101 का
101 का 25 किलोहर्ट्ज. 25 kilohertz. Okay. Next is logic gates. Logic gate. आता है ना सबको लॉजिक गेट्स, राइट? हाँ थोड़ा थोड़ा आता है. लॉजिक गेट्स में सबसे पहले हम सपोज पढ़ते हैं नॉट गेट. ओके, सो नॉट गेट इट इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? इन्वर्टर. उसका सिंबल कैसा रहता है? Triangle and आगे एक This bubble. is what A, this is what Y, this is what A. So जब भी A 0 रहेगा तो आउटपुट रहेगा 1, जब भी A 1 रहेगा तो आउटपुट रहेगा 0. तो इन्वर्टेड Zero. आउटपुट. तो इसका हम लोग कंक्लूजन कैसे रखते हैं? आउटपुट इज 1 when every Output is input is low. invert of input, right? मतलब whatever is the input, output उसका exactly opposite रहेगा. Okay, next suppose it is what? AND gate. तो हमें पता है कि AND गेट के लिए 2 इनपुट्स आर रिक्वायर्ड, बट ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत सारे इनपुट्स भी रह सकते हैं. ओके, so suppose this is what A and this what B. So what is the truth table? A B 0 0 0 1 1 0 1 1. Output क्या रहता है? 0 0 0 1. Sorry. So what is the conclusion? Output is high When input When- is high. when Both all the inputs. inputs, all the inputs are high. inputs are the Next is what? Suppose OR gate. So this is what the symbol of OR gate. Okay, this is what Two Y, this is input. A, and this is B. So A, B, and Y. This 0 0 0 1 1 0 1 1. A, And B, output क्या रहेगा? 0 1 1 1. So क्या रहेगा? Output is high when ev- any one input of is the high. input is High. getting or not? उसके बाद में next is suppose NAND gate. NAND gate मतलब क्या? AND gate plus NOT gate. Okay, so this is suppose AND gate, this is what NOT gate. So ये total क्या बन जाता है? NAND gate जिसका symbol ऐसा होता है. So this is what A B and this is what Y. Okay, so Y क्या रहता है? Y रहता है A dot B the whole bar. A dot B the whole bar. Okay, and A dot B the whole bar, it is nothing but what? A bar plus B bar. आपको पता ही है, आपने लॉजिक में पढ़ा है मैथ्स में. This is what A B सर ब्लर 0 ब्लर 0 दिख रहा है. 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1. Okay, what will be the value of Y then? Whatever is the output of the AND gate, इसका inverted रहेगा. उल्टा. So this will be 1 0 0 0. Conclusion क्या लिखे बताओ? Output is high When When- both the inputs are low. when all, जरूर नहीं, both, दो नहीं, बहुत सारे रह सकते हैं. Okay, when all the inputs are low. Okay, output is high when all the inputs are low. Okay, clear दिख रहा है कि अभी blur दिख रहा है? Okay, moderate है sir. moderate. चलेगा. अच्छा, लिख लिया? आपको कुछ स्क्रीनशॉट लेना है या लिखना है? लिख लो. हो गया लिख के? हाँ. हाँ सर 1 मिनट का लास्ट वाला सॉल्यूशन देगा.
गणेशन क्या हो गया? एक मिनट के लास्ट वाला ऑसिलेटर सम वाला एक ये दिखाओ ना, सॉल्यूशन दिखाओ ना। यार वो अभी कौन से पेज पे है? 101 वाला, हाँ हाँ 25 किलोहर्ट्ज वाला, ये रहा। हाँ वही। चलेगा सर, हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो फिफ्थ वाला गेट इट इज व्हाट? फिफ्थ गेट इट इज और गेट। नॉर गेट, सॉरी। नॉर गेट। हाँ वही और हुआ था ना। और प्लस नॉट। ओके, दिस इज नथिंग बट और प्लस नॉट। सो और गेट क्या होता है? और गेट इट इज लाइक दिस प्लस नॉट गेट, सो दिस इज नॉर गेट। टुगेदर इसका साइन क्या बनाएंगे? एक बबल रहेगा इसके आगे, and this will be what? This will be NOR gate. This is what A, this is what B, this is what Y. Y it is nothing but A plus B the whole bar. Y it is nothing but A plus B the whole bar. Okay. Yes. सर वापस पे नोटबुक ब्लैंक हो गया। तो यार अरे मस्त। कुछ दिख ही नहीं रहा है। नोटबुक दिख रहा है। मजा आ रहा है। नोटबुक दिख। सर आप गायब क्यों जाते बार बार? सर को उनका वीडियो बंद करना चाहिए, उसके वजह से भी लोड हो रहा है। मैंने अपना वीडियो बंद कर रखा है। Okay. वाओ। So इसका क्या रहेगा? A, B and Y. Okay. So 0 0 0 1 1 0 1 1 इनपुट, तो आउटपुट क्या रहेगा? और गेट का क्या था? 0 1 1 1। इसका ऑपोजिट रहेगा, बोलो। 1 1 1 हाँ, 0 1 1 0। 0। श्रेष्ठ बताओ, कंफ्यूजन बताओ। Sir, I'm not able to see the Sir. notebook. 1 0 0 0 ना? हाँ एक हाँ मिनट। सर। और ये क्या चल रहा है? क्या चल रहा है क्या श्रेष्ठ? ये देखो A Sir, प्लस बी क्या रहेगा? नहीं A प्लस बी एक 0 1 1 1 रहेगा, राइट? सो A प्लस बी द होल बार क्या रहेगा? 1 अरे वो 1 समझा। 0 0 0। हाँ चलो अभी वो बताओ सम- कंक्लूजन। output is output High. is 1 when both the inputs High. are low. When all the inputs are low. Okay. When both the inputs are. जरूरी नहीं है ये दो ही रहेगा कनेक्शन यहाँ पे इनपुट के लिए, अभी बहुत इसमें सारे तो इनपुट्स दो भी ही है रह ना। सकते, बता रहा हूँ मैं। ओके, ऐसे Next. literally सिर्फ आप कैसे कर सकते हो? अगर सपोज ये देखो यहाँ पे दिस इज व्हाट, कौन सा गेट है ये? और गेट, राइट? हाँ। सो दिस व्हाट एन और गेट। तो इसके आगे एक बबल रख दिया, तो ये कौन सा गेट बन गया? नॉर गेट। नॉर अगर इसके दोनों भी इनपुट Nor. को शॉर्ट कर दिया, इसके इसके दोनों पीछे। भी इनपुट को शॉर्ट कर दिया, तो ये क्या बन गया? नॉट गेट। ये नॉट गेट है, ठीक है? ये कौन सा गेट बन गया? नॉट गेट। हाँ। नॉट समझा? नॉट सो दिस इज व्हाट एंड गेट, नैंड गेट। एंड गेट। नाउ नैंड गेट के दोनों भी इनपुट को शॉर्ट कर दिया, तो ये कौन सा गेट बन गया? नॉट नॉट Sorry, Not not gate. gate. Not gate. ये दोनों भी क्या है? नॉट गेट है, नॉट गेट। ठीक है? तो नेक्स्ट इज, मुझे बताओ ये कौन सा गेट है? यहाँ पे दोनों Nor. जगह पे नॉट है और आगे भी नॉट है, ओके? और ये और गेट है। आगे बताओ ये कौन सा गेट है इन जनरल टोटल? और गेट। ठीक है, चलो देखते हैं। ये y का वैल्यू क्या आएगा? a बार, और And? यहाँ पे क्या है? b बार है।
फिर उसके बाद में दोनों को क्या कर रहे हैं हम लोग, और कर रहे हैं, मतलब ऐड कर रहे हैं। फिर उसके बाद में जो आउटपुट है वो टोटल उसका इन्वर्ट हो रहा है, तो इट इज नथिंग बट a And double bar dot b double bar. Okay, so this is nothing but a dot b, that is And nothing but gate. and gate. एंड बन रहा हूँ, डी And मॉर्गन gate. फ्लो, So डी मॉर्गन फ्लो। नहीं, So this is what and gate. तो इन जनरल आप ये देखिए कि अगर ये और गेट है, इसके दोनों भी इनपुट पे होने चाहिए नॉट, आउटपुट पे भी नॉट होना चाहिए, तो और गेट क्या बन जाता है, एंड गेट। समझा? तो अभी ये बताओ ये क्या बनाएगा, ये एंड गेट है, इसके आगे नॉट है, बोलो ये क्या बनाएगा अभी? और बनाया और गेट। गेट। और गेट। दिस इज व्हाट एन और गेट। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, अभी नेक्स्ट इज, अगर सपोज यहाँ पे एक मैंने नॉट गेट बनाया और इधर ऐसे बबल है, ओके, तो ये कौन सा गेट है? दिस इज व्हाट और, ओके, ये और है, तो इन जनरल टोटल क्या बनेगा ये? ए बार इट इज नथिंग बट और गेट ओनली, Not. पूरा 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 और गेट और ही गेट है, हाँ। क्योंकि नॉट डॉट सर, नॉट क्या होने वाला है, दो बार कैंसिल बबल होने है वाला ना? है। हाँ, तो ये हाँ। नॉट क्या होने वाला है, कैंसिल होने वाला है, ठीक है? तो जब भी ऐसे दिखे तो नॉट कैंसिल कर देना। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, Yes. यस। लिखना है किसी को या आगे बढ़े? हो गया सर, आगे बढ़। चलो, स्क्रीन दिख रहा है ना आपको 102? दिस सिंबल रिप्रेजेंट व्हाट? नॉट नॉट Not. गेट। Not gate. अभी बताना मैंने, ठीक है? तो इट इज व्हाट अ Yes. नॉट गेट। नेक्स्ट, सो द सिंबल इट रिप्रेजेंट, बोलो क्या है ये, कौन सा है? NOR. इट इज अ नॉर गेट। ओके, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ द गेट सर्किट शोन इन द फिगर? a डॉट बी द होल बार, राइट? यस। ये है NAND गेट का, सो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द गिवन सिंबल आर फॉर सम लॉजिक गेट्स, तो पहला XOR गेट, NOR गेट रिप्रेजेंटिवली और रिस्पेक्टिवली आर, ओके, गिवन बिलो आर सिंबल्स ऑफ समझा ही नहीं। सम लॉजिक गेट्स। इसमें से XOR और NOR गेट ये करना है। B. ऑप्शन बी 2 and 3. 2 and 3. ऑप्शन बी सर। दूसरा कौन सा गेट्स होते हैं? XOR गेट और NOR गेट, XNOR गेट। ओके, सो दिस इज XNOR. व्हाट एक्सक्लूसिव OR गेट। एक्सक्लूसिव OR गेट क्या होता है? एक्सक्लूसिव OR गेट ये होता है, दिस इज कॉल्ड एज एक्सक्लूसिव OR गेट। ओके, और इसी का ऑपोजिट क्या रहता है? इसी का ऑपोजिट होता है एक्सक्लूसिव NOR पीछे गेट। डंडी होती है। NOR गेट. So this is nothing but के आगे exclusive एक बबल होगा। NOR gate. Okay. Yes. This is what A B 0 0 0 1 1 0 1 1 आउटपुट क्या रहता है इसका? बोलो, एक्सक्लूसिव OR गेट का। सेम रहेगा तो जीरो, ए बी द होल बार, वही अगर डिफरेंट रहेगा तो ए 1 प्लस बी द होल बार। डिफरेंट रहेगा तो 1 और सेम रहेगा तो 0 रहता है। 0। तो सेम है ये 0, तो ये 1 1 1 और ये 0। 1 0. क्यों बनाया गया एक्सक्लूसिव OR गेट? क्योंकि यहाँ पे जब भी आउटपुट जब भी सेम आ गया दोनों, ओके, तो दोनों भी हाई रहेगा, तो OR गेट का आउटपुट क्या रहता है? यहाँ पे 1 होता है, ठीक है? बट यहाँ पे 0 कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि दोनों भी अगर स्विचेस ऑन है तो आउटपुट क्या रहना चाहिए? आपका ऑफ रहना चाहिए, क्योंकि एक्सेस करंट उसमें से जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में से। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, सो दिस इज व्हाट एक्सक्लूसिव OR गेट। इसका जो फंक्शन है ये क्या रहता है? दिस इज ए, इट इज व्हाट OR गेट, तो प्लस और ये, दिस इज द ये मॉड सिंबल। बी. हाँ, तो बोलो इसका एक्सप्रेशन क्या रहता है? A बार B प्लस B बार A। बी प्लस ए बी बार. Output is low when when All all inputs are the same. inputs are same. When all the inputs are same. Okay. इसका opposite it is what exclusive NOR gate. So this is what AB and this is what Y. So 0 0 0 1 1 0 1 1. So 1 0 0 1. This is what exclusive NOR gate.
वाह इसका क्या रहता है? दिस इज व्हाट y it is equal to a dot circle and this is what b. So y it is equal to a bar b bar plus A bar ab, A B a bar b bar plus ab. Okay. What is the conclusion? Output is high. Output is high when all the inputs are inputs are same. same. Okay. ठीक है. Yes. तो given below are the symbols of some logic gates. तो XOR गेट कौन सा इसमें? सेकंड वाला. ओके. और Second, NOR गेट कौन सा इसमें? थर्ड वाला. third तो one. they are 2 and B. 3. Option B. Okay. Next 106. Which of the following gates produces output of 1? So output 1 चाहिए आपको. B. ये तो बहुत सिंपल है. ओके. सो B1. 0 0 आउटपुट OR गेट का आएगा 0 और उसके आगे नॉट है तो वो बन जाएगा 1. तो One. ऑप्शन क्या आएगा? B. So B. 107 the following truth table corresponds to the logic gate. तो देखो A ऐसा है, A B और X is nothing but your Y. Okay. तो जब भी Or हाँ, very good. Or Any gate. one of the input it is what high, then output it is high. So it is nothing but OR gate. Option B. Given truth table it is off. किसका है ये truth table बताओ? option A. nor, और क्या NAND gate? NAND. NAND gate. और NAND है. एक मिनट. NAND. हाँ हाँ NAND. हाँ NAND है. So it is what a NAND gate. And gate. जोश में बताओ ये सिंपल न्यूमेरिकल है इसमें ये मत कर देना, रॉन्ग मत कर देना. इट इज व्हाट अ NAND गेट. ऑप्शन ए. नेक्स्ट. श्रेष्ठ अपना माइक बंद रखो. 109. ओके. व्हिच लॉजिक गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग लॉजिक गेट? And And अभी And. बताया नॉट है यहाँ पे and again bubble is there, so it is what an AND gate. Option C is there. Okay, option C is correct. 110. The logic behind NOR gate is that which gives. Okay, तो मैंने conclusion बताया ना NOR gate का. बताओ. I input A. when both the Option A. option A. High output when both the inputs are low. Okay, good. So option A is correct. Which logic gates produces low output when any of the input is high? NOR gate. nor, NOR gate. Good. NOR. Very good. NOR gate. Okay. So NOR gate is correct. Output of NAND gate is 0. तो NAND gate का output कभी 0 रहता है. When both the both the inputs inputs are are high. श्रेष्ठ माइक बंद रखो आपका, वो पीछे डिस्टरबेंस आ रहा है. So output of NAND gate is 0 when both the inputs are 1. One. Right? So option C. Okay. अभी देखिए ये 113 के आगे वाला जो गेट है इट इज नथिंग बट रिप्रेजेंटिंग अ नॉट. ओके. सो एक डॉट है उसके आगे नॉट गेट है तो डॉट और नॉट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. राइट. तो बचा क्या? एंड. तो दिस इज ऑप्शन सी. Hmm. गेटिंग और नॉट? हाँ. ऑप्शन सी इज Yes. देयर. 114 का भी सेम है. ओके. आसाम में आया था ये तो. ओके ठीक है, सेम आएगा ना. एंड ऑप्शन ए. Yes. ओके. And एंड नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन ये देखो एक ही इनपुट से आगे NAND दिया है. ठीक है. तो इट अगेन रिप्रेजेंट व्हाट? नॉट गेट. ओके. सो अगेन बबल एंड दिस नॉट विल गेट कैंसिल. आंसर क्या आएगा? एंड गेट. And ओके. सो 115 का आंसर भी क्या है? एंड गेट है. बी ऑप्शन. हाँ ये बताओ. option D. What will be the output Y in the following circuit when all the inputs are first 0 and then it is what? 1. तो ये वाले केस में अपने को क्या करना है? ये वाले केस में आपको A B C ऐसा बनाना है. ठीक है. P आपका क्या है? P आपका क्या है? P है आपका A dot B. D. Then Q क्या है आपका? Q it is nothing but P dot C the whole bar. Okay. This Q it is nothing but what? Y. This Q it is nothing but what? Y. तो A B C क्या लिखा आपने? 0 0 0. तो A dot B क्या आएगा? 0. Then P dot C bar मतलब ये 0 dot 0 0 उसका बार मतलब 1. तो पहले का आंसर आएगा 1. दूसरा all are 1. तो इसका आंसर आएगा 1.
then C is again 1, okay? So 1.1, okay? It is 1, then उसका complement it is what 0. So 1,0, option D, Yes. right? हाँ sir. Then which gate can be obtained by shorting both the input terminals of a NOR gate? Not. नॉट गेट ना, नॉर गेट का Yes. दोनों भी टर्मिनल अगर शॉर्ट कर दिया तो वो क्या बन जाता है, नॉट गेट बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 118 में आप देखोगे y के पहले क्या है, नॉट है, उसके पहले भी क्या है, नॉट है ना। सो दोनों नॉट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या, एक सिंपल गेट जो स्टार्ट में है, वो कौन सा गेट है, नॉर No. गेट। हाँ not. नॉर गेट, ऑप्शन सी, ओके। Yes. 119 में ए के आगे कौन सा गेट रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉट। डी के आगे कौन सा गेट रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉट। और ये क्या है, नॉर गेट। तो इनपुट में भी नेगेशन है, आउटपुट में भी नेगेशन है, और एक और गेट है, तो वो क्या बनाएगा, एंड गेट ना। Yes. अभी अभी देखा था ना हमने, इट रिप्रेजेंट Yes, व्हाट, sir. एंड गेट। सो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। सर 119 में बबल है कि नहीं है वो? ये आगे है ना, बबल है ना। क्योंकि उसमें बाकी सब में सर्कल किया है उन्होंने। वो है, बबल है वहां पे, वो Okay. थोड़ा डार्क दिख रहा है, ठीक है, बबल है वहां पे। तो एंड गेट, इट इज डी ऑप्शन। 120 in the circuit, the binary inputs A and B both are 1 in one case and both 0 in the next case. तो output Y क्या आएगा in these two cases will be, ठीक है। करोगे ये, Zero. बी है। सो ए भी पहले 0 0 है, तो यहाँ पे 0 0 आ गया, तो इसका आउटपुट क्या रहेगा, 0। Zero. तो अगर 0 0 है तो ये 1 1 आ गया, तो आउटपुट क्या रहेगा इसका, 1, ठीक है। अभी ये और गेट है, और गेट में 0 या 1, आउटपुट क्या रहेगा, 1। फिर उसके बाद में ये नॉट गेट है, इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 0। तो पहले केस में आउटपुट क्या रहेगा, 0, ठीक है। अभी दूसरे वाले केस में इधर क्या रहेगा, 1, यहाँ क्या रहेगा 1, इधर क्या रहेगा 0, यहाँ क्या रहेगा 0। तो 1 1 का आंसर क्या आएगा, 1। 0 0 का आंसर क्या रहेगा, 0। तो अगेन दिस वर्ड और गेट, आउटपुट करेगा 1, और इसका निगेशन, तो इसका आउटपुट करेगा 0, ओके। 0,0, ऑप्शन बी। Yes. 121 आइडेंटिफाई द लॉजिक ऑपरेशन कैरिड आउट इन द फॉलोइंग सर्किट। तो ये क्या नॉट है, ये भी क्या नॉट है, अगेन नैंड गेट के इनपुट पे, तो कौन सा गेट बना रहा है, Or और गेट, ओके। सो दैट इज व्हाट, एन और गेट। Yes. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, संदेश कर रहे हो ये वाला, संदेश, सादिया। जी सर। 122 सर कर रही हूँ। करो। यज्ञेशा, बी। गुड। यज्ञेशा, ट्विंकल, हाँ सर। बी आया सर। बी आएगा, ओके। सो ये ए है, यहाँ पे जा रहा है ए, ये बी है, बी का कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, सो दिस व्हाट बी बार। फिर इसके बाद में एंड हो रहा है ये दोनों, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी बार, ओके। देन दिस इज व्हाट ए,
तो इसका नॉट है तो ये रहेगा ए बार, ये बी है, तो एंड का आंसर क्या आएगा, ए बार डॉट बी बार। ओके, देन दिस वर्ड और, तो ये क्या रहेगा, ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी। ओके, दैट इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ओके, तो 123 का आंसर बताओ। सी। सी आ रहा है ना? हाँ ये और है ना, और दोनों इनपुट पे भी और आउटपुट पे भी नॉट है, तो एंड आ जाएगा ये एंड। ओके, सो दिस इज ऑप्शन सी। 124 बताओ, 124। बी। बी। और गेट। अमन एक्सप्लेन करो। हाँ तो सर एक्स जो हमारा आउटपुट है ना, तो उसका आउटपुट हाई आ रहा है, तो इसके लिए वो और गेट होएगा। क्यों हाई आ रहा है वो? बिकॉज ऊपर डी में आउटपुट हाई है, सी में भी आउटपुट हाई है, जब भी पहला पल्स ये किया हम लोग ने तभी। तो देखो ए बी सी डी आपके इनपुट्स है और एक्स आपका आउटपुट है, ठीक है। तो आप देखो एक्स पहले 0 है और फिर हमेशा इट इज इक्वल टू व्हाट 1। तो कभी 0 है जब भी सबके सब क्या है 0, डी 0 है, सी 0 है, बी 0 है, ए 0 है। लेकिन एक्स हमेशा 1 है क्योंकि ए बी सी डी में से कोई ना कोई एक तो हमेशा 1 है, राइट ना। सो दैट्स व्हाई इज व्हाट एन और गेट, क्योंकि आउटपुट इज हाई व्हेन एनी ऑफ द इनपुट, कोई भी एनी ऑफ द इनपुट इट इज व्हाट हाई। ओके, सो दिस व्हाट एन और गेट, ऑप्शन बी। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। ताहा, समझा ताहा? Yes, sir. ओके, सो 125, NAND gate or NOR gate are called digital building blocks. Okay, so it is a true statement that NAND gate and NOR gates are called as digital building blocks, क्योंकि ये दोनों गेट को मिला के हम कोई भी गेट बना सकते हैं। जैसे कि आपने देखा था कि NAND गेट जो है, इसके दोनों भी इनपुट को शॉर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, नॉट। नॉट गेट। ओके, NAND गेट के सर दोनों भी, यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं ना? हाँ, हाँ, यूनिवर्सल बिल्डिंग यूनिवर्सल ब्लॉक्स या डिजिटल डिजिटल दोनों बिल्डिंग ब्लॉक्स दोनों चल रहे हैं। ओके, बिकॉज ये डिजिटल Okay. 1 एंड जीरोस में होता है ना, ये लैंग्वेज इज व्हाट बुलियन, सो इट इज डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक्स। अगर दोनों के इनपुट पे अगर हमने नॉट लगा दिया, राइट ना, नैंड गेट के, तो वो एंड गेट बन जाएगा। वही नॉर गेट के दोनों इनपुट पे नॉट लगा दिया तो वो एंड गेट बन जाएगा, राइट ना। सो दे आर डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक्स। Repeated use of NAND and NOR gate can produce all the basic or complicated gates. So this is again true, na? So both are true, and also reason is a correct explanation of the assertion. So that is option A, यस। right? So now next is miscellaneous problems. Okay, 126. When a semiconductor device is connected in a series with a battery and a resistance, a current is flowing through. A current is found to flow in the circuit. If, however, the polarity of the battery is reversed, practically no current flows in the circuit. The device may be. तो अगर एक डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रहा है, दूसरे डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो वो कौन सा डिवाइस हो सकता है? PN junction. PN जंक्शन। ओके, सो दैट इज व्हाट ऑप्शन डी, क्योंकि PN जंक्शन का वो ही एप्लीकेशन है, दैट यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, दूसरे डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं करवाता, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट 127। ओके, तो पीक टू पीक वोल्टेज जो है हमारा -5 वोल्ट से लेके +5 वोल्ट तक है, ठीक है। एंड इफ in a PN junction a square input signal of 10 voltage it is applied as shown in the figure, so what will be the output across RL? क्या लगता है आपको? डायोड नेगेटिव डायरेक्शन में अलाउ नहीं करता, तो सिर्फ पॉजिटिव वाला पल्स ही रहेगा। तो डी रहेगा ना, बॉम्बे या दादर? दादर। अदर। ओके, सो डी ऑप्शन 5 वोल्टेज वाला पॉजिटिव पल्स रहेगा, राइट। अगर वही डायोड अगर उल्टा लगाया रहता, समझ में आ रहा है, डायोड अगर उल्टा लगाया रहता तो ऑप्शन सी रहता करेक्ट। समझ में आ रही है कि नहीं? ओके, नेक्स्ट 128, which of the following statement is not true?
resistance of an intrinsic semiconductor decreases with the increase in temperature. तो ये ट्रू है, क्योंकि सेमीकंडक्टर में जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो कंडक्टेंस बढ़ता है, और मेटल्स में जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाते हो कंडक्टेंस कम होता है. सेमीकंडक्टर में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो रेजिस्टेंस कम होता है, और वही मेटल्स अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है. सो ऑप्शन ए इज नॉट ट्रू. बी ऑप्शन क्या है, डोपिंग प्योर सिलिकॉन विद ट्रैवल एंड इम्प्योरिटीज यूज्ड इन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो ये भी ट्रू है. मेजॉरिटी कैरियर्स इन एन टाइप आर होल्स, तो ये फॉल्स ना. क्या रहता है, मेजॉरिटी कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स. Electrons. ओके, तो ऑप्शन Option सी, C. ऑप्शन सी इट इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट. जो आपका आंसर है ऑप्शन सी. ये वी कैरेक्टरिस्टिक्स किसका दिख रहा है आपको? द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट VI characteristics of a semiconductor device. Which of the following statement is correct? Okay, किसका है ये? Cell. Solar cell. सोलर सेल. ए क्या रिप्रेजेंट करता है? ओपन सर्किट वोल्टेज ना. Yes. और बी क्या रिप्रेजेंट करता है? शॉर्ट सर्किट Short. करंट. हाँ, पढ़ो अभी ये क्या लिखा है. It is a VI characteristics of solar cell where A represent क्या? Open circuit voltage and B represent what? Short circuit current. So option A correct है ना? हाँ. So option A correct है. Okay. Next is 130. Identify the semiconductor devices whose characteristics are given below in the order A, B, C, D. तो जो फर्स्ट वाला है वो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड दिख रहा है, ठीक है. जो दूसरा वाला है वो जीनर डायोड दिख रहा है. क्यों जीनर डायोड? क्योंकि उसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो नजदीक है, राइट ना. तो इट कैन बी यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर. बहुत बहुत जल्दी इट कैन बी यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर. सो बी वाला जो है वो जीनर डायोड है, और सी वाला जैसे कि अभी आपने देखा कि वो सोलर सेल है, राइट. Yes. एंड डी वाला, ये जो डी वाले में जो एक्स एक्सिस पे वी लिखा है ना, वो वी नहीं आना चाहिए. वहां पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट ही रहना चाहिए, वी नहीं रहना चाहिए. सो जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज होता है रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है? कम होता है. सो इट इज नथिंग बट द लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर. LDR. ठीक है, हाँ, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर. तो पहला क्या है? सिंपल डायोड, पीएन जंक्शन डायोड. दूसरा क्या है? जिनर डायोड. तीसरा है सोलर सेल, और दूसरा है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस. सो डी ऑप्शन है ना ये. यस और नो गणेशन? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. D option. 131. In gallium arsenide material, Ohm's law does not hold good. So जितने भी semiconductor devices है उसमें Ohm's law obey नहीं होता. क्यों नहीं obey होता? क्योंकि Ohm's law कहता है कि resistance is always positive. Okay, resistance value is always positive. और यहाँ पे जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस में, वहां पे रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाता है? कभी कभी नेगेटिव आ जाता है. ओके, ओके. सो यहाँ पे व्हाट विल बी द आंसर नाउ? C. C, no? Negative resistance exists in VI characteristics. Okay, VI variation में there is a negative resistance which exists. Okay, so that's why Ohm's law is not obeyed in semiconductor devices. और दूसरे जो मटेरियल है उसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू कांस्टेंट चलता है, बट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में by changing the value of voltage there can be large change in the value of current or very small change in the value of current. It depends upon the cut off voltage value, right? So वहां पे that's why Ohm's law is again not obeyed in that case. Next question 132. In PN junction diode, change in temperature due to heating only D. affects reverse bias. अरे डी ऑप्शन तो दिखाया ही नहीं अभी तक. affects only कहना था. reverse resistance, affects only forward resistance, या does not affect the resistance of the PN junction, या affects overall VI characteristics. So it affects overall VI characteristics. क्योंकि जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो कंप्लीट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स दोनों पे अफेक्ट होता है, ठीक है. सो दोनों पे अफेक्ट होने की वजह से ऑप्शन डी आएगा. तो क्योंकि फॉरवर्ड बायस में अफेक्ट नहीं होता, सिर्फ रिवर्स बायस में अफेक्ट नहीं होता, दोनों में अफेक्ट होता है, तो दैट विल बी ऑप्शन डी. ओके. 133. अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज मुझे बताओ कि सर ये वापस आओ, या फिर आप बहुत फास्ट जा रहे हो. नेक्स्ट
The resistivity of semiconductor increases with temperature. What is the reason? In a conducting solid, the rate of collision between free electrons and ions increases with increase in temperature. तो बताइए resistivity of semiconductor increases with temperature, ये सही है क्या? नहीं तो assertion is false. कौन से ऑप्शन में? डी। एक ही ऑप्शन में, डी ऑप्शन में ही है, राइट? तो डायरेक्ट आपका आंसर डी आ जाएगा. 134. A wire of aluminum and a wire of germanium are cooled to a temperature of this much. तो cooled मतलब temperature is decrease. तो एल्यूमिनियम मेटल है, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है. तो एल्यूमिनियम को अगर आप मेटल को अगर आप ठंडा करोगे, टेम्परेचर कम करोगे तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा. बट सेमीकंडक्टर को अगर आप टेम्परेचर कम करोगे उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा. ओके, तो बताओ. Resistance of aluminum wire decreases and the germanium wire increases. Option D. D. डी नहीं. हाँ. Okay, D for Dadar. Okay. Shrestha, 135. An LED is constructed from a PN junction based on a certain semiconducting material whose energy gap is given. What will be the wavelength? श्रेष्ठ, क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? श्रेष्ठ चला गया लगता है श्रेष्ठ है. ओके, अदिति बताओ कैसे सॉल्व करेंगे? Sir, वो HC upon lambda is I think less than कुछ EG ऐसे कुछ है क्या? सर हाँ. ए आ रहा है. ये फॉर्मूला यूज करना है जो मैंने नोटबुक में लिखा है. E is equal to HC divided by lambda. An LED is constructed from a PN junction based on a certain semiconducting material whose energy gap is given. So we want to get the value of wavelength lambda. So lambda क्या रहेगा? Lambda will be equal to HC divided by E. Okay. तो H क्या है आपका? 6 point क्या प्लैंक्स कांस्टेंट कितना था? 6.63 into 10 raised to minus. 10 raised to minus 34. Okay. And C value 3 into 10 raised to power 8. और E का वैल्यू it is 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. उसको जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. बोलो कितना करेंगे? 1.6 into 10 raised to power minus 19. into 10 raised to power 19. Okay. सॉल्व करो इसे. सर जल्दी होगा तो जल्दी लेक्चर खत्म लो. हाँ, हो जाएगा तो फिर लेक्चर खत्म कर देंगे. लग रहा है क्या हो जाएगा गणेश? 6.54 इन हाँ सर लग रहा है. क्या आंसर आ रहा है? ए आंसर आ रहा है. ए आ रहा है. ए हाँ, आ रहा sir. है, ए आ रहा है. आ गया सबका? सॉल्व किया सबने? तो Yes, 6.5 sir. into 10 raised to power minus 7 meters. Okay, so this is the wavelength. 136. Carbon and silicon both have same lattice structure, having 4 bonding electrons in each. However, C is insulator, whereas Si is intrinsic semiconductor. क्यों ऐसा क्यों? C का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? C का एटॉमिक नंबर होता है 6, राइट? और सिलिकॉन का कितना होता है? सिलिकॉन का होता है 14. 14. 14 ठीक है. तो अगर हम इसका देखेंगे फर्स्ट ऑर्बिट एंड सेकंड ऑर्बिट एंड थर्ड ऑर्बिट देख के, तो कार्बन का हो जाएगा 2 एंड दिस विल बी 4. सिलिकॉन का हो जाएगा 2, 8 एंड 4, राइट? तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है उसके ऑटोमोस्ट शेल में, बट कार्बन का जो है वैलेंस बैंड इट इज वेरी मच नियरर टू द न्यूक्लियस.
So there is a very strong force of attraction between positively charged nucleus and negatively charged electron. तो इसलिए ये जो है ये 4 electrons को ये नहीं करेगा, free नहीं करेगा. So because there is no free electrons, so carbon it acts like what an insulator. Okay, and whereas in silicon जो 4 electrons है उसके third orbit में होता है, तो इसलिए the last orbit it is somewhat away from the nucleus. ठीक है, so there may be a presence of what free electrons. तो सिलिकॉन इसलिए it is classified into intrinsic semiconductor. Okay, बताओ क्या आंसर रहेगा? सी लग रहा C. 4 bonding C. electrons in the case of C lie in second orbit, whereas in the case of silicon they lie in the third orbit. Okay, so option C. Option C. C option is correct. Okay, next. 137. In a Zener diode, the reverse bias voltage is 3 volts and the width of depletion region is 300 angstrom per unit. The electric field intensity will be. तो electric field intensity क्या है? E. Heat is equal to V divided by D. याद है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर में आपने पढ़ा था ये. ओके, हाँ कैपेसिटर वाले केस में, कैपेसिटर वाले डेरिवेशन. कैपेसिटेंस ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल. वोल्टेज In दिया है, the डिस्टेंस दिया है. C6. So this is 3 divided by 300 into 10 raised to power minus 10. So 3 cancel हो गया, ये हो सी जाएगा 10 सी raised to power plus 8 वोल्टेज पर मीटर आएगा ये. ओके, सी लेकिन आपको सेंटीमीटर में पूछा है, सेंटीमीटर में पूछा है. देखो ना गणेशन, वोल्टेज पर सेंटीमीटर पूछा अरे है, हाँ तो कितना आएगा? 8 वोल्टेज ये 100 सेंटीमीटर, 10 तो raised दैट to विल बी 10 10 raised to raised power to 6. बी ऑप्शन आएगा, बी. ओके, गणेशन क्वेश्चन ध्यान से देखो, वोल्टेज पर सेंटीमीटर पूछा है. ठीक है, नेक्स्ट. The graph below represent IV characteristics of Zener diode. Which part of the characteristics of the curve is most relevant for its operation as a voltage regulator? तो forward bias में तो Zener diode acts like what a normal PN junction diode, मैंने बताया था आपको, and reverse bias में it act like what a voltage regulator. अभी reverse bias में भी there is CD and DE curve, तो कौन से curve में it will be act like a voltage regulator? DE. 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 DE, obviously DE Option curve D. में option D. Okay, it will be acting like what a voltage regulator. Next, 139. A full wave rectifier circuit along the input and output waveforms are shown in the figure. So this is what a full wave rectifier circuit. Input में input है जो output है. So A, B, C, D में से ऐसे waveforms आते हैं. The contribution of the output voltage from diode 2 is. So ये जो first diode है 1, diode 1 दिख रहा है आपको? ये पॉजिटिव साइकिल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. पॉजिटिव साइकिल्स मतलब क्या? A and C. ओके, whereas ये जो सेकंड डायोड है, डायोड 2, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव हाफ साइकिल्स को. नेगेटिव हाफ साइकिल्स मतलब B और D. So the contribution of output voltage from diode 2 is, तो diode 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिव हाफ साइकिल, that is B and D. B and D कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन B. सबको समझा क्या? हाँ सर. B option. Then 140. The constant DC voltage is required from a variable AC voltage. Which of the following correct order of operation? Okay. So देखो, AC has to be converted to DC. तो AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए क्या रहना चाहिए? पहले रेक्टिफायर, फिर फिल्टर, फिर रेगुलेटर. AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए पहले क्या करेगा? आप यूज करोगे रेक्टिफायर सर्किट. सो रेक्टिफायर सर्किट क्या करेगा? AC को किसमें कन्वर्ट कर देगा? पल्सेटिंग DC में. पल्सेटिंग. ओके, अब ये पल्सेटिंग DC में देयर इज अ चांस कि सपोज थोड़ा लिटिल बिट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ व्हाट AC आल्सो पल्सेटिंग DC में. तो ये AC 100% AC कभी रिमूव करेंगे? नेक्स्ट स्टेप विल बी फिल्टर. थोड़ा सा बुक नीचे करना. So pulsating DC, it is nothing but will be passed through filter, and we will be getting
100% AC removed. ओके एंड Yes. उसके बाद में अभी रेक्टिफायर हो गया, फिल्टर हो गया, और फिर क्या बचा? रेगुलेटर. Regulator. So regulator, it is going to give you constant DC. Regulator will give you constant DC. Okay. So Yes. कौन सा ऑप्शन है? C, right? C. Rectifier, filter and regulator. ये 141 करके बताओ. कर रहे हो गणेश? अनिरुद्ध? हाँ सर रुको कर रहा हूँ. चलो. सुना रहेगा, डिलीट कर दिया. है आंसर? वोल्टेज गेन 4 आया. सर पावर गेन का क्या फॉर्मूला है? पावर गेन का फॉर्मूला बताया था ना मैंने. AV मल्टीप्लाइड बाय बीटा. वोल्टेज गेन मल्टीप्लाइड बाय ओके. करंट गेन. C आया. चेक करो पीछे की. हम्म.
अदिति आया आंसर? तो कुछ और वैल्यूज आ रहे हैं. P, NP and transistors connected in common emitter configuration in a given amplifier, a load resistance मतलब output resistance. So Rout दिया आपका 800 ohms is connected in the collector circuit and the voltage drop across it. So voltage drop across it is, so V out it is given 0.8 voltage. If the amplification factor is this, so beta it is equal to 0.96 and input resistance of the circuit it is given Alpha. RL. Sorry, alpha. So alpha it is equal to 0.96 and input resistance it is 192 ohms. The voltage gain it is. The voltage gain AV is equal to beta times R out divided by RN. So beta कितना है? Beta alpha हाँ, divided हमने by 1 कैलकुलेशन से minus किया 100 आ रहा है, सॉरी बीटा बीटा 24 आ रहा है. 24. हाँ 0.96 divided by 1 minus 0.96. So 0.96 divided by 0.04. तो कितना आ रहा है? 24. 24. So this will be 24 into R out का वैल्यू 800 divided by इसका वैल्यू 192. तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है? AV का वैल्यू कितना आ रहा है? 100. कितना आ रहा है? 4. नहीं 100. 100 आ रहा है 100. 100. हम्म क्या क्वेश्चन नंबर है? 141. सर AV इक्वल टू ये V आउट अपॉन V इन करके देखो आता है 4 आता है आंसर मेरे को वैसे आया लेकिन ऐसे भी तो आना चाहिए. कुछ तो गड़बड़ हुआ है $96 ये भी गलत आएगा. ओके. हाँ गणेशन बताओ कैसे किया? हाँ एक मिनट हाँ तो पहले मैंने IC निकाला V आउट अपॉन R आउट सॉरी V आउट निकाला IC और R आउट डाल के V out तो दिया है ना, IC निकाला आपने. हाँ सॉरी उल्टा बोला So IC it is nothing but V out divided by R out. It is nothing but हाँ 0.3 divided by 800. तो ये आएगा 1 million.
ठीक है। हाँ, 1 into 10। फिर अल्फा इक्वल टू आई सी बाई आई बी, तो आई बी निकाला फिर मैं। So what is the value of IB then? IC divided by आई बी alpha. मेरे को 1/960 आया, मैंने वैसे रख दिया। 1 into 10 raised to power -3 and alpha value it is 0.6. तो ये आएगा 1 divided by 960 IB का वैल्यू। हाँ, फिर ए वी इक्वल टू वी आउट बाई वी इन डाला। AV is equal to V out divided by V in. हाँ, फिर वी इन के जगह में मैंने आई बी इंटू जो 192 ये दिया है उससे मल्टीप्लाई किया। IB into RN हाँ 0.8। IB का वैल्यू 1 upon 90, तो सपोज ना 960 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया एंड RN इट इज 192। ऐसे हाँ। करेंगे तो आंसर आएगा 4। ठीक है। ऐसे आया। लेकिन क्यों वैसे करेंगे तो क्यों आ रहा है और ऐसे करेंगे तो क्यों नहीं आ रहा है? बीटा का वैल्यू राइट निकाला क्या? तो मैंने बीटा यूज नहीं किया ना, लास्ट वाले इसके लिए यूज किया। हम्म, 24 बराबर है। ठीक है, अभी के लिए ऐसे करो, मैं बताता हूँ आपको कि ये ऐसे क्यों नहीं आ रहा और ऐसे क्यों आ रहा है। ठीक है, ये वाला सॉल्यूशन देख लो, ये सॉल्यूशन देख लो। तो इसके बाद में पावर चाहिए, पावर गेन। पावर गेन कैसे आएगा? पावर गेन गणेशन, पावर गेन सर वो मैं तुक्का लगाया था, वो नहीं आया मेरे को। हाँ, तो पावर गेन एवी इंटू बीटा ना एवी इंटू बीटा है, लेकिन अभी फिर से बीटा का वैल्यू 24 आ रहा है ना। सर, हम लोग का वोल्टेज गेन का फॉर्मूला ही गलत तो नहीं है शायद, क्योंकि वोल्टेज गेन हमेशा आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, तो फिर बीटा कहाँ से आया उसमें वोल्टेज गेन के फॉर्मूला में? नहीं आया नहीं, था है ना बीटा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि कैसे आया। एवी का वैल्यू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट होता है ना, करेक्ट? हाँ। अभी वोल्टेज क्या होता है? करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ना। सो अच्छा हाँ, तो बीटा अपॉन IC इंटू आर आउट, और वी इन क्या रहेगा? IB इंटू आर इन, ऐसा। तो IC अपॉन IB क्या रहेगा? बीटा, बीटा इंटू आर आउट डिवाइडेड बाय आर इन, ऐसा। सो ये वैल्यू रहेगा EV का। ठीक है, तो बीटा को छोड़ के करंट गेन मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन आ गया 4, करंट गेन 0.96 से मल्टीप्लाई करके देखें, सो 3.84। सी ऑप्शन है क्या पीछे? हाँ वही वही। तो मेरे ख्याल से करंट गेन अगर दिया रहेगा अल्फा, तो बीटा के रिस्पेक्ट में नहीं चाहिए हमें, अल्फा के रिस्पेक्ट में ही इसको कैलकुलेट करना है। समझ में आ रही कौन है? सा करंट गेन है वो कंफ्यूजन होता है सर बहुत बार। नहीं, वो देखना है ना आपको, 1 से नीचे है तो अल्फा, 1 के ऊपर है तो बीटा। नहीं मतलब जैसे इसमें मतलब इसमें कौन सा यूज करने का पावर गेन के लिए वैसा? हाँ, तो अल्फा का इंफॉर्मेशन दिया है ना, तो अल्फा यूज करना है। अच्छा। ठीक है,
तो देखो ट्रांजिस्टर में दो गेन होते हैं, वोल्टेज गेन, करंट गेन, पावर गेन, ये दो रहते हैं, एक इनपुट साइड के और एक आउटपुट साइड के, ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑन कि आपको किसका वैल्यू दिया है, बीटा का वैल्यू दिया है या अल्फा का वैल्यू दिया है, ठीक है। सो बीटा का वैल्यू हमेशा एम्पलीफिकेशन फैक्टर्स के लिए गेन कैलकुलेट करना रहता है, और अल्फा का वैल्यू इनपुट और आउटपुट के बीच में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसका रहता है, ठीक है, कलेक्टर और एमिटर के बीच में। तो अगर अल्फा का वैल्यू दिया है तो बीटा का फॉर्मूला बीच में नहीं लेकर आना आपको, ये पूरा विद रिस्पेक्ट टू अल्फा यू हैव टू गेट। ओके ओके, समझाइए। यस हाँ सर। चलो नेक्स्ट 142. In a given figure, diode D is connected to an external resistance R and an EMF of 3.5 voltage. If the battery potential developed across the diode it is 0.5 voltage, the current flowing in the circuit is. हाँ, तो ये सर्किट भी बना के दिया है आपको। दिस इज वेरी सिंपल। ये 3.5 वोल्टेज अप्लाई किया ना बैटरी, और डायोड के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है? 0.5। तो टोटल वोल्टेज कितना हो गया रेजिस्टेंस के दिया अक्रॉस? है 3 वोल्टेज। तो करंट फाइंड करना है, तो करंट इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। सो 3 डिवाइडेड बाय 100, 3 डिवाइडेड बाय 100 कितना हो जाएगा? 30 हो 3 जाएगा, मिलियन। राइट? 30 million. 30 हाँ मिलियन 30 मिलियन। ये ऑप्शन समझ में आ रहा है कि नहीं? नेक्स्ट 134। तो ये तो आता है आपको 134 तो वाला सिंपल है। To get output 1 from the circuit shown, D कौन बोल रहा है? एक सेकंड अभी देखिए आपको आउटपुट में एक्सप्रेशन y is equal to a plus b dot c आ रहा है तो देखो इसमें एक्सप्रेशन। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लास्ट आउटपुट चाहिए ना आपको, तो आउटपुट साइड से चेक ये करना है अपने को। तो ये एंड गेट है, ठीक है। एंड गेट को आउटपुट कभी 1 रहेगा जब भी दोनों भी 1 रहेगा, ठीक है। तो नीचे तो C है, तो C इज इक्वल टू 1 किधर है? हाँ ऑप्शन सी ना। सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन में ना C इज इक्वल टू 1, तो एक ही ऑप्शन है, तो डायरेक्ट सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इसके आगे और गेट है, और गेट मतलब दोनों में से कोई भी एक इनपुट अगर हाई है 1 0 या 0 1, ठीक है, तो चलेगा। हाँ तो लेकिन सी को 1 होना इंपॉर्टेंट है, तो वो दैट इज ऑप्शन सी में ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो दैट इज ऑप्शन सी। 144 तो वाला तो आपको करके देखना है, फटाफट करो। 1.1 ऊपर वाला सॉल्व कर रहा है, 1.1 फिर नॉट उसका, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। 0 का नॉट कितना हो जाएगा? 1। 1 और 0 क्या हो जाएगा? 1। तो फर्स्ट वाले का आंसर कितना आया? 1। सी ऑप्शन। वैसे सेकंड वाला करो। सेकंड वाले का क्या आएगा आंसर? 1 नहीं 0 आएगा। 1 0 फिर उसका एंड ही है ऐसी है 0, देन उसका आंसर आ गया 1। फिर थर्ड वाले का, ओके, थर्ड वाला सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट सी ऑप्शन आ जाएगा, राइट। 1 0 0 और 1, तो ये आंसर आएगा 0। तो 0 1 1 0, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। 145। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट ऑफ OR gate. ए Output Y will be 1 when the input A or B or both are 1. So option A, right? So option A. Option D किसका रहेगा? ऑप्शन डी किसका आंसर रहेगा? कौन से गेट का? अरे बताओ। नहीं एक्सॉर। एक्सॉर, ओके, एक्सॉर गेट का, गुड। एक्सॉर गेट करेगा ऑप्शन डी। 146. Inputs of the digital circuit are shown below. The output Y is, okay, तो क्या रहेगा आउटपुट Y? A not B the whole bar, okay. ए। 1 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
एक्सॉर में दोनों डिफरेंट रहेगा तभी 1 होता है। हम्म तो इधर बोला ना, मतलब दोनों ना। आइदर आइदर मतलब दोनों में से कोई एक ना। ओके। So A B and this is what or this is what Y, फिर ये नॉट गेट है, this is what C, तो ये हो जाएगा A डॉट B द होल बार और ये हो जाएगा C बार। A डॉट B द होल बार है कि ऑप्शन A B C में नहीं है, तो इसको यही सॉल्व कर देंगे, दिस विल बी A बार प्लस B बार ऐसा, ठीक है। और गेट है फिर A बार प्लस B बार प्लस C बार, लाइक दिस, C ऑप्शन आएगा इसका आंसर, राइट, ऑप्शन C। 147, the circuit diagram shows a logic combination with the states of output x, y, z given for the inputs p, q, r, s. All are set to 1. When input p and r changes to state 0, with inputs q and s still at 1, the states of output x, y, and z change to. तो फर्स्ट केस तो आप भूल ही जाओ, फर्स्ट केस तो कुछ काम का ही नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए दिया आपको, ठीक है। सर्किट डायग्राम बनाओ नोटबुक में और सेकंड स्टेज का ही लिखो इनपुट्स। सो ये पी क्यू है, ये है एक्स का वैल्यू, ये एक्स नॉर है और ये जेड है। दिस इज अ नॉट गेट, बबल नहीं दिया ओके, लेकिन नॉट गेट है वो। बबल नहीं दिया रहेगा तो इट इज व्हाट अ बफर, बट बफर इट इज नॉट इन योर सिलेबस। ठीक है ऐसे ट्राई क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया अनिरुद्ध? नहीं नॉट गेट सर बोला ना अभी। अनिरुद्ध गणेशन आवाज नहीं आ रही आपकी। बीच में टैगल क्या है वो आरएस के आगे है ना सिर्फ आगे बबल है ना, और क्या आगे बबल है, नॉट गेट है सर अभी तो ये दो नॉट गेट है, तो ये दोनों कैंसिल मैं हो गए। सुना नहीं कि डिस्कनेक्ट हुआ ये आ रहा है। तो वो बबल और नॉट कैंसिल हो गए, ठीक है, बबल और नॉट कैंसिल हो गया। अनिरुद्ध क्या बोल रहे थे बताओ। हाँ समझा समझा वही है। ठीक है, सो क्या लिखा है यहाँ पे, व्हेन इनपुट P एंड R चेंज टू स्टेट 0, तो P और R जो है 0 0 हो गया, एंड Q स्टिल एट 1, तो ये 1 है, तो इसका आंसर क्या आएगा 0, X का आंसर आएगा 0, और का आंसर क्या आएगा 1, Y का आंसर आएगा 1, अगेन दिस वर्ड 1, तो और है तो 1 आएगा, आगे नॉट है तो 0 आएगा, Z का आंसर 0, तो 0 1 0, राइट, सी ऑप्शन आया सबको, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आ गया। पूछा क्या है उसमें? हाँ 148, for a given logic circuit the output will be 1 under which of the following conditions? सब लोग 148 पे रहो, 148। डी है सर।
एक मिनट, कैसे किया गणेशन, कैसे किया? सॉरी मैं ए और बी चेक किया, ए और बी 0-0 है। आई गेस ए है। कैसे किया दीदी? चेक किया पूरा, वो ए बी सी डी डाल के। अच्छा, तो ये ऊपर वाला जो गेट है ये आपको एंड गेट दे रहा है, ठीक है? नीचे वाला गेट भी आपको एंड गेट दे रहा है, हाँ ए है सर। और उसके एंड गेट के आगे इट इज व्हाट, नॉर गेट इज देयर। सो नॉर गेट का आंसर आपको क्या चाहिए? 1। नॉर गेट का ट्रूथ टेबल याद है ना? ए बी 00011011। आउटपुट क्या रहेगा? 1 0 0 0, ठीक है? तो यहाँ पे आउटपुट क्या रहना चाहिए? 0 0, तो ये आउटपुट 1 आएगा। 0 0 मतलब ए बी क्या रहना चाहिए? 0 0। सी डी क्या रहना चाहिए? 0 0, ओके? या फिर कोई भी एक 1, ओके? बी में नहीं आ रहा है क्या? बी में नहीं आ रहा है? तो बी में क्वेश्चन आपको गलत है क्या? output क्वेश्चन के लिए अगर ABC तो 0 रहेगा ना satisfy हो रहा आउटपुट, तो डी आ रहा है आंसर, पीछे डी दिए, तो क्वेश्चन में गलती है शायद। ABC तो सेटिस्फाई हो रहा है। हाँ ए बी सी सेटिस्फाई हो रहा है ना? हाँ हाँ, सर। हाँ सेटिस्फाई, डी का आंसर 0 आ रहा है। तो क्वेश्चन रॉन्ग है। क्वेश्चन रॉन्ग है, उधर 0 आना तो चाहिए, ओके? आंसर क्या लिखे सर? आंसर डी आएगा ना अभी? हाँ, हाँ, तो डी आएगा आंसर। तो क्वेश्चन में 1 के जगह 0 आएगा तो डी बराबर है। हाँ, 1 के जगह 0 लिखना है, क्वेश्चन रॉन्ग है ना? 1 के हाँ, जगह 0 लिखो, ओके। ठीक है? नेक्स्ट 149, to get output 1 for the following circuit, the correct choice of the input is? बी 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 B. बी फॉर बॉम्बे। तो सी का वैल्यू हमेशा 1 रहना चाहिए, पहले जैसे, राइट? सो हाँ बी आएगा, बी आएगा। नेक्स्ट 150, the truth table of the system 4 NAND gates are used, okay? बहुत बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन। चलो इसका ट्रूथ टेबल फाइंड करो। सर ऑप्शन दिखाओ ना जरा, उसका नीचे जाओ थोड़ा और। ए है, ए आ रहा है। ए ए कौन सा गेट होता है ये? ऑप्शन ए कौन सा गेट होता है? देखो यहाँ तक आ गया ए। एक्सॉर एक्सॉर हाँ, एक्सॉर एक्सॉर गेट है, नैंड से एक्सॉर बनाया। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है सर। तो याद रखो, ये देखो, ये जब भी ऐसा कॉम्बिनेशन रहेगा, कितना गेट्स है यहाँ पे? 1 2 3 4 4 NAND गेट, इसके ऐसे वाले कॉम्बिनेशन के ये क्या बनाता है? एक्स और गेट, ठीक है? वही 4 नॉर गेट रहेंगे यहाँ पे, नॉर गेट्स,
ऐसे ही यही यही तरीके से नॉर गेट्स इफ सपोज देयर, सो दिस दैट विल रिजल्ट इनटू एक्स नॉर गेट। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, तो ये हाँ नॉर और ये एक्स नॉर आप याद रख सकते हो। नॉर गेट के लिए एक्स नॉर, एंड गेट के लिए, नैंड गेट के लिए एक्स और गेट। ठीक है, नोट पॉइंट लिख के रखो। इसको चाहिए तो सॉल्व कर सकते हो आप। सॉल्व करके आपको a बार b प्लस b बार a आएगा। ठीक है, लास्ट दिखा दो सर। the truth table of the combination of the logic gates shown in the figure is ए है। ऑप्शन ए। a कौन सा ऑप्शन गेट? ए। a कौन सा गेट ए है? ए ए एंड सॉरी और एक्स नॉर है क्या? एक्स, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। और गेट है। और हाँ और ही है, बराबर। और है। और गेट है ना ये। और गेट है। तो नैंड गेट और नॉर गेट के कॉम्बिनेशन से हम और गेट बना रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हाँ। इसके लिए उसको डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं, यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं नैंड गेट को और नॉर गेट को। हम लोग डायरेक्ट एंड गेट, और गेट, नॉट गेट ज्यादा यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो एरर देने का प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा रहता है। सो एरर का प्रोबेबिलिटी नैंड गेट का सबसे कम रहता है, तो ज्यादातर भी यूज नैंड गेट। ओके, फिर नॉर गेट भी यूज। सो नैंड एंड नॉर गेट से हम लोग सब कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, 151 हो गया। कौन सा ऑप्शन है ये? हाँ ऑप्शन ए। ए। ठीक है, ये अभी बताओ कौन से एमसीक्यूज पेंडिंग थे हमारे? 2-3 एमसीक्यूज पेंडिंग थे ना। 31 34 बाकी याद नहीं, दो और दो था शायद। नहीं, और एक ही था शायद सर। ये 64 वाला था एक शायद से। हाँ हाँ। 31. A dominant mechanism for motion of charge carriers in forward and reverse bias silicon PN junctions are, so drift and diffusion words are there. Okay, तो याद रखो, diffusion it is used for majority charge carriers and drift it is used for minority charge carriers. ठीक है, तो forward bias में कौन सा charge carriers move होता है? majority charge carriers. तो diffusion किसमें होता है? forward bias में। और रिवर्स बायस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लो होते हैं, तो ड्रिफ्ट होता है रिवर्स बायस में। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी, राइट ना? 31 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी, डिफ्यूजन इन फॉरवर्ड बायस एंड ड्रिफ्ट इन रिवर्स बायस। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। नेक्स्ट इट इज 34th. An application of a forward bias to a PN junction. Application of a forward bias to a PN junction. तो सपोज ये PN junction में बना रहा हूँ यहाँ पे। So this is what PN junction. So forward bias कर रहे हैं हम लोग। Forward bias मतलब पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर रहे हैं। 34 था ना डाउट अपना? हाँ। हाँ सो नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, सो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा देगा एन रीजन में। ओके, सो increases the number of donors on n side. So A option is correct. Okay, B option में क्या लिखा है? Increases the electric field in the depletion zone. Okay, देखो अभी ये डिप्लीशन जोन के अंदर बात हो रही है।
increases the potential difference across the depletion zone. So अगर C ऑप्शन की बात करें, C ऑप्शन मतलब क्या? What is the normal सिलिकॉन जंक्शन में अगर बात करें विदाउट एनी बायस, अनबायस में, तो डिप्लीशन रीजन का वोल्टेज कितना रहता है? 0.7 वोल्टेज ना, ऐसा ना? तो yes, अगर अगर ये रिवर्स बायस लगाओगे, आप रिवर्स बायस लगाओगे तो ये 0.7 वोल्टेज से बढ़ते जाएगा, राइट? सो इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डिप्लीशन जोन. सो रिवर्स बायस में इंक्रीज होगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है? फॉरवर्ड बायस. तो फॉरवर्ड बायस में वो डिक्रीज होने वाला, राइट? तो डिप्लीशन रीजन का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होने वाला है? डिक्रीज होने वाला है. तो डिप्लीशन रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? डिक्रीज होगा. समझ में आ रहा है? लेकिन ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अक्रॉस द बैटरी, अक्रॉस द पीएन जंक्शन डायोड, वो इंक्रीज होगा. इट विल बी विद रिस्पेक्ट टू बैटरी, बट डिप्लीशन रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? डिक्रीज होगा. समझ में आ रहा है? तो ये कंफ्यूजन था yes, हमारे पास में कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द बैटरी, बैटरी के डायरेक्शन में इट विल इंक्रीज, बट डिप्लीशन जोन के अक्रॉस, डिप्लीशन जोन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होने वाला है? डिक्रीज होने वाला है. ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए ऑप्शन ही करेक्ट है. ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके, तो 34 का ऑप्शन ए. समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, यस ऑल ऑफ यू. ये किसने किया है? yes. स्क्रीन क्लियर करो. नेक्स्ट इज 64 ना. Yes. गणेशन, और कौन सा न्यूमेरिकल था? और कौन सा एमसीक्यू था? हो गया सर. 64 एक पेंडिंग है ना. सर आज अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले लो. मुझे नहीं लगता कोई अटेंडेंस वगैरह ज्वाइन किया आज. हाँ, मैं लेता हूँ 2 मिनट रुको. वो 64 का सॉल्यूशन देखना है. और दूसरा कौन सा क्वेश्चन था जो सेम 0 डिग्री आ रहा था उसमें? वो क्वेश्चन नंबर कौन सा था? उन दोनों में डिफरेंस क्या था? ये कॉमन एमिटर और कॉमन बेस था क्या?
82 था कॉमन बेस एम्पलीफायर। ओके, तो याद रखो इसको कि कॉमन एमिटर में द फेज डिफरेंस इट इज 180 डिग्री एंड कॉमन बेस में इट इज 0 डिग्री। ओके, सिंपली इसको याद रखो। अदरवाइज Yes. यहाँ पे देखो ये VCC है, ये RC है सपोज, यहाँ पे नेक्स्ट ट्रांजिस्टर है, बेस है, दिस व्हाट एन एमिटर है, ये अक्रॉस PCE है, द करंट फ्लोइंग हियर इट इज व्हाट IC। तो अगर हम लोग यहाँ पे KVL लगाए तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पहला VCC पॉजिटिव है तो VCC, फिर वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट सो इट विल बी माइनस IC RC। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एमिटर सो इट विल बी माइनस VCE। this value will be, again we are going towards ground, so this value is what 0 because mesh is complete, circuit is complete. So what is the value of VCC then? VCC value या VCE value, VCE value अगर मैं देखूं तो VCE value it will be equal to VCC minus ICRC। okay, VCE will be equal to VCC minus ICRC। अभी VCE it is what voltage drop across collector and emitter। okay, जो कि ये value majority of the case it is what very low and it is what constant। if this value it is constant तो अगर IC का value बढ़ता है, if IC value it is what increasing, so VCE value it will be decreasing। getting or not? so such that ये जो voltage है IC का value अगर increase होता है तो VCE का value क्या हो जाएगा, VCE का value, ये जो output है VCE ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। getting or not? because more value will be subtracted। तो output if it is what increasing, so what about the input value, it will decrease। so this is what the inverse। okay, so the phase difference it will be 180 degree। Yes. yes क्या समझा क्या, क्या ऐसे ही yes? ये नहीं समझा कि इनवर्स समझा। है 180। ये दूसरा दिख रहा है आपको स्क्रीन शेयर, सेकंड वाला। ये अल्टरनेट मेथड लिखा हुआ दिख रहा है। हाँ देखो, अल्टरनेट मेथड वाला फॉर कॉमन एमिटर एम्पलीफायर इनपुट सिग्नल क्या रहता है, इनपुट करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। सो बेस करंट है RB, इनपुट रेजिस्टेंस है, और बीटा का वैल्यू होता है IC डिवाइडेड बाय IB। तो IC मतलब कलेक्टर करंट, VCE का वैल्यू क्या होता है, VCC माइनस IC RC, जो कि मैंने अभी आपको बताया लिख के, राइट। तो VCC का वैल्यू चेंज नहीं होता, VCC का वैल्यू कांस्टेंट रहता है। तो इफ इट इज व्हाट अ कांस्टेंट तो उसका चेंज कितना रहेगा, 0। तो अगर वो 0 है तो VCE का वैल्यू क्या रहेगा, माइनस में आ जाएगा, राइट। व्हाट माइनस साइन इंडिकेट्स, माइनस साइन अगेन इंडिकेट्स आउट ऑफ फेज। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, आउट ऑफ फेज। दैट मींस इनपुट एंड आउटपुट आर 180 डिग्री। ठीक है, तो इन शॉर्ट याद रखो कि कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में द फेज डिफरेंस इट इज व्हाट 180 डिग्री, व्हाइल इन कॉमन बेस द फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इट इज 0 डिग्री। समझ में आया कि नहीं? ओके, 2 मिनट रुको, अटेंडेंस लेता हूँ। वो टाइम हो गया, ओवर टाइम हो गया अनिरुद्ध? हो गया ना सर। ओके, ताहा प्रेजेंट है, अनिरुद्ध प्रेजेंट है, अमन प्रेजेंट है, तेजस, Yes. यस सर, हूँ मैं। अंजलि इज देयर, दिवांश यादव नहीं है ना आज? है लेकिन absent। ये है दिवांश पर मेंटली एब्सेंट है। ओके, अदिति इज प्रेजेंट, ट्विंकल इज देयर, सादिया इज देयर, विनीत सूर्यवंशी इज नॉट देयर ना? विनय है क्या? विनय है सर। विनीत भी था, वो भी है। हाँ विनीत था पे अटेंडेंस डाल के भाग गया। काम मतलब क्या है? वाट लग गया। पूरा ड्रेन हो गया सर दिमाग। विनय नहीं है ना? विनय
6 घंटा विनय है, 3 अलग अलग सब्जेक्ट। ईशा ईशा सर हूँ ना। हाँ विनय है, ईशा इज नॉट देयर, संदेश है, गणेशन इज देयर, सुरेश कटियाल प्रेजेंट है क्या? निशिता इज यस नॉट देयर, प्राची नहीं है, ऋतुजा भी नहीं है, ओ प्राची नहीं है, सॉरी ऋतुजा भी नहीं है, क्रिस्टोफर इज आल्सो नॉट देयर, राइट? क्रिस्टोफर नहीं है, एक जमाना पहले आया था। तमन किधर है? तमन नहीं है ना, तमन भी नहीं है, नहीं ईशा शेट्टी भी नहीं है, धनश्री भी नहीं है ना, धनश्री इज देयर, संकेत एम सर नो। वही बोल। प्रेजेंट, ओके चलो थैंक यू सो मच, बाय। ओके सायोनारा। बाय सर, बाय सर। शब वगैरह।